میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا خلیج فارس میں 33 جزائر سے مل کر بنے ہوئے خوبصورت سے ملک بحرین کی۔ بحرین، جسے عمومی طور پر بحرین کہا جاتا ہے، اس ملک کے 33 جزائر میں صرف 10 جزائر ہی ایسے ہیں جہاں انسانی آبادکاری ہے۔ باقی جزائر کو اب سیر و تفریح کی غرض سے سنوارا جا رہا ہے۔ خلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر موجود ہے، جبکہ جنوب اور مغرب کی جانب خلیج فارس کے پار سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب سے بحرین شاہ فہد برج کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ قطر اور بحرین کے درمیان بھی خلیج فارس میں برج بنانے کے منصوبے پر 2008 میں کام شروع ہونا تھا، جو قطر اور بحرین کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد شروع نہ ہو سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سی ایسی باتوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جن سے شاید آپ لوگ آج سے پہلے لا علم ہوں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ بحرین کے تاریخی ادوار کی بات کریں تو بحرین کی سرزمین پر پہلی بار انسانی آبادکاری کرنے والوں میں ڈیلمون نسل کے لوگ تھے، پھر تیلوس اور پھر اوال نسل کے لوگوں نے مشرقی عرب کے ممالک کو آباد کیا، جن میں ایک جزیرہ نما بحرین بھی تھا۔ اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیر نگیں رہا۔ ان حکومت کرنے والوں میں ایرانی فارسی لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح سے 3 صدی قبل مسیح تک بحرین کو سلطنت فارسیہ کا حصہ بنائے رکھا۔ 3 صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک بحرین میں اسلام سے داخلے سے قبل تک پارتھیا اور ساسانی لوگوں نے سلطنت پارتھیا اور ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحرین نے ہجرت کے 7ویں سال یعنی 629 عیسوی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی بحرین میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اعلیٰ حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا۔ ابو اعلیٰ حضرمی، جن کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ابو اعلیٰ حضرمی بحرین کے گورنر رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مسجد الخمس اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں سے ایک تھی۔ اس مسجد کو اسلام کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر دوم بھی کہا جاتا ہے، کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بحرین پر قبضے کے لیے پرتگیزیوں کی عثمانیوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں۔ ڈاورات بربوزا وہ پہلا پرتگیزی تھا جس نے 1485 میں پہلی بار بحرین کے جزیرے پر اپنے قدم رکھے تھے، جس کے بعد واسکو ڈے گاما کا ہند کی جانب سفر کرتے وقت یہ جزیرہ نظروں میں آ گیا۔ پرتگال کے بحرین پر قبضے کے بعد عمانیوں، ایرانیوں اور عثمانیوں نے پرتگیزی حکومت کو ختم کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1559 میں ایالات لہسا کے گورنر مصطفیٰ پاشا کے دور حکومت میں بحرین پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 1602 میں ایرانیوں اور 1717 عیسوی میں عمانیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ 1736 میں نادر شاہ کے دور حکومت میں ایک بار پھر سے بحرین پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے سلطنت فارسیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایرانیوں کے جتنے سال بحرین پر حکومت رہی، وہاں خانہ جنگی جاری رہی۔ ایرانیوں اور عمانیوں نے بحرین پر ایک عرصہ دراز تک جنگ لڑی، جس کا فائدہ برطانوی اٹھا گئے۔ 1820 عیسوی میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بحرین میں داخل ہوئے اور پھر تمام ملکی معاملات برطانویوں کے بغیر نہیں چلتے تھے۔ سن 1932 میں تیل کی دریافت ہوئی اور بحرین پیٹرولیم کمپنی کا وجود پیدا ہوا۔ تیل کی دریافت کے بعد برطانویوں نے ایران کی سرحدی حدود کی طرف سے اپنی نیوی کو بحرین منتقل کر دیا۔ گورے تیل نکالتے رہے اور ملک میں صحت و تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتے رہے۔ 1968 میں جب برطانویوں نے بحرین سے اپنے معاہدے کے پورا ہونے پر تعلقات کم کیے تو بحرین، متحدہ عرب امارات کی ریاستوں اور قطر نے ایک اتحاد قائم کیا، جو ان 9 ریاستوں کے حکمرانوں کے نا اتفاقیوں کی وجہ سے پروان نہ چڑھ سکا۔ 1959 میں ایران نے دوبارہ بحرین پر قبضے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بحرین میں ریفرینڈم کروایا جائے کہ کیا بحرین کی عوام ایران میں شامل ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ ابھی ریفرینڈم بھی نہیں ہوئے تھے کہ مئی 1970 میں ایران نے بحرین پر اپنا قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ابھی تک بحرین کو برطانیہ سے مکمل آزادی نصیب ہونا باقی تھی۔
15 अगस्त 1971 को बरतानिया ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 21 सितंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। आज़ादी के बाद रॉयल नेवी को खत्म कर दिया गया। 10 एकड़ का रकबा अमेरिकन नेवी को दिया गया, जो बहरीन की हिफाजत के नाम पर खलीज फारस में अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो गई। आज़ादी के बाद से बहरीन में गैर मुल्की लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी। ये लोग अपने ममालिक से आए तो रोजी रोटी की गर्ज से थे, मगर रोजगार के बेहतर मौके और करेंसी वैल्यू बेहतर देखते हुए यहीं के होकर रह गए। आज भी बहरीन में बसने वाले लोगों को अगर मुवाजना किया जाए तो 50.7% अरबी लोग यहाँ आबाद हैं। इन 50.7% में से 46% बहरीनी अरबी लोग हैं, जबकि 4.7% मुसलमान बहरीन में अपनी इस्लामी फतूहात के बाद से आकर आबाद हुए थे। इनके अलावा 45.5% साउथ एशियन लोग हैं, 1% यूरोपीय और 1.2% दीगर ममालिक से आकर बस जाने वाले लोग हैं। साउथ एशियन में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से आए हुए लोगों की है, जो कामकाज की गर्ज से बहरीन आए और फिर यहीं के होकर रह गए। इस्लाम इस मुल्क का सरकारी मजहब है, मगर बहरीन की 100% आबादी मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम पूरी आबादी का 81.2% है। 10% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है, जबकि 9.8% में हिंदू, सिख, यहूदी और दीगर मज़ाहब के मानने वालों की एक बड़ी तादाद आती है। लफ्ज बहर का मतलब समुंदर और बहरीन का मतलब 2 समुंदर हैं। ये नाम बहरैन को समुंदर के बीचों बीच होने की वजह से दिया गया था, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर ये 2 समुंदर कौन से हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की कुल आबादी 14,51,200 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 149वां नंबर था। बहरीन अपनी आबादी के एतबार से मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है, जबकि इस मुल्क का अपने 33 जज़ायर को मिलकर कुल रकबा 765.3 मरबा किलोमीटर बनता है, जो अपने रकबे के एतबार से आजाद ममालिक की फहरिस्त में 174वें नंबर पर आता है। 27 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मनामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1800 ईस्वी में आबाद किया गया था। आज की बहरीन की 3 लाख की आबादी को ये शहर अपने अंदर बसाए हुए है। मनामा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब लैंड ऑफ ड्रीम है, यानी ख्वाबों की जगह। दोस्तों, कुवैती दिनार के बाद बहरीनी दिनार दुनिया की दूसरी सबसे महंगी करेंसी है। एक कुवैती दिनार लगभग पाकिस्तानी 400 रुपए के बराबर होता है, जबकि एक बहरीनी दिनार 320 पाकिस्तानी रुपयों और 180 इंडियन रुपयों के बराबर होता है। बहरीन का कॉलिंग कोड +973 और डोमेन नेम BH है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बहरीन से 2 घंटे आगे है, जबकि पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए 1899 किलोमीटर का सफर खत्म करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पाकिस्तानियों और भारतीयों हत्ता के दुनिया के 114 ममालिक को बहरीन ने 2012 से ई वीजा की सहूलत दे रखी है। अब आपको पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, बस किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन स्टोर से रिजर्वेशन टिकट बुक करें। अगोडा जैसी किसी ट्रस्टेड वेब स्टोर से होटल बुक करें। बुकिंग ऐसे होटल की करें जिसके पैसे आपको होटल में दाखिले के वक्त देने हों। रिजर्वेशन टिकट और पे एट होटल बुक करने का फायदा आपको ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपका वीजा नहीं लगता तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होते। यूबीएल बैंक का विज इंटरनेट कार्ड या MCB का लाइट कार्ड आपको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मदद करेगा, जबकि वीजे के हसूल के लिए आपको www.evisa.gov.bh पर जाकर अपने लिए एक अदद वीजा हासिल करना होगा, जिसके बाद आप बाआसानी बहरीन का सफर कर सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले अफराद सऊदी अरब में मौजूद बहरीन की एम्बेसी या ऑनलाइन ई वीजा हासिल करने के बाद अपना सफर बजरिया बस या कार के भी कर सकते हैं। बहरीन दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने मुल्की खिदमात करने वालों को बहरीन की शहरियत दे रखी है। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 के करीब पाकिस्तानी बहरीन में मुकीम हैं और इनमें से 30,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको बहरीन की शहरियत भी हासिल है। ये लोग या तो बहरीन में 25 साल का अरसा गुजार चुके हैं या वो लोग हैं जो बहरीन में सरकारी अदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से एक बड़ी तादाद में बलोच बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको बहरीन हुकूमत की जानिब से शहरियत दी जा चुकी है।
दोस्तों, बहरीन एक इस्लामी मुल्क है जिसकी हुकूमती बागदौड़ अरसा दराज से खलीफा खानदान के पास है। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ बेहयाई आम नजर आती है। बहरीन में सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नहीं, बल्कि दुबई जैसी अय्याशियां जरूर होती हैं। एक तरफ तो बहरीन में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन मसाजिद देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ डिस्कोज और कसिनोज नौजवान नस्ल को बुराई की तरफ रागब करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। जहां बहरीन के तारीखी मुकामात, मसाजिद और कुदरती हुस्न को देखने के लिए साल 2017 में 1,27,00,000 अफराद आए, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बहरीन में अय्याशियों की गर्ज से आए थे, और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहरीन से सोना खरीदने आए थे, क्योंकि बहरीन का सोना अपनी मिसाल आप समझा जाता है। फुटबॉल बहरीन का सबसे मकबूल खेल है, जबकि बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, मार्शल आर्ट, क्रिकेट, स्विमिंग और मोटर स्पोर्ट दीगर मकबूल खेले हैं। 1950 को पैदा होने वाले हमाद बिन ईसा अल खलीफा 1999 से बहरीन के बादशाह के तख्त पर विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी आला तालीम बरतानिया से हासिल की। बादशाह बनने के बाद हमाद ने मुल्क में तालीम की तरफ खूब तवज्जो दी। तालीम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमाद के बादशाह बनने से कबल बहरीन में तालीम की शरह 80% के करीब थी, जो अब बढ़कर 95.7% हो चुकी है। बहरीन और कतर का परचम डिजाइन और साइज के लिहाज से तकरीबन एक जैसा है। बहरीन के परचम में सुर्ख रंग है, जबकि कतर के परचम में मैरून रंग है। पेट्रोलियम और एल्यूमीनियम की माइनिंग इंडस्ट्री, इस्लामी बैंकिंग और सियाहत का शोबा इस मुल्क को तरक्की देने वाले अहम तरीन शोबे हैं, जबकि माहीगीरी और कीमती मोतियों की एक बड़ी तादाद समुद्र से हासिल की जाती है। एक ऐसा मुल्क जहां बारिशें ज्यादा नहीं होती, वहां एक ऐसे दरख्त का सहरा में बिना पानी के 400 सालों से सरसब्ज खड़े रहना यकीनन एक मोइसे से कम नहीं। द ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाने वाला यह दरख्त सहरा में हर साल 50,000 से ज्यादा सियाहों को खींच लाता है। दोस्तों, जहां बहरीन की दीगर दिलचस्प जगह हैं, वहीं बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। यह दुनिया की पहली ऐसी इमारत थी जिसकी दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान 3 ब्रिज बनाए गए थे। इन तीनों ब्रिज के दरमियान 3 अदद विंड टरबाइन लगाई गई हैं। एक टरबाइन 225 किलोवाट की है, यानी टोटल 675 किलोवाट की टरबाइन लगाई गई हैं। इन तीनों टरबाइन से इस टावर की 15% बिजली की जरूरियात को पूरा किया जाता है। दोस्तों, ये थी बहरीन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो, तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हौसला अफजाई के लिए जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाना। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।